नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed थर्ड सेम, कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, सेशन characteristics of democratic society and socialist society. Students, today our topic is democratic society and socialist society characteristics. First is introduction. The nature of each society determines the nature of the administrative institutions of that society. The administrative system of any country cannot exist without being influenced by its political, social, and economic environment. Two types of societies are found in the whole world: democratic society and socialist society. In a democratic society, governance is completely disciplined. The powers of government are not vested in any individual or a particular class, but the members of the whole society, whereas in a socialist society, the state has complete control over the society and all the powers are vested in the state. In a democratic society, the person is participable and the state is considered a means, and in a socialist society, the state is considered as the participable and the person is the instrument. There are some nations where both democratic and socialist societies has been adopted. Both these systems were found in that country goes into the same nations as India. Two societies. First is democratic society. Democracy is made up of the Greek word demos, log, and kratia, kratia, which means powers, pupils, or governance. Socialist, in which are values and ideas of democracy are accepted, are called democratic societies. The core of democratic societies features. First is, in this type of society, all decisions are taken after open discussion. Second is, efforts are made to involve the entire society in the decision process. Third is, the decision making authority rests with the respectives elected by the public. And fourth is, final decisions are taken on the basis of majority. And socialist society, the concept of an
individualist or environmentalist state was followed by the rise of capitalism and the rise of autocratic rules in which the masses were exploited. These circumstances gave rise to a new ideology called socialist ideology. This ideology is more popular in modern time. Following are characteristics of socialist society. First is, in a socialist society, the area of work of the state is more. The main goal of the state is to bring economic, social, and political justice and equality. Third is, the state encourages corporation in place of competition. And fourth is, here the state gets more importance. This session prepared by digital version 2 Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you have any query, please comment box. I will sort out. अब कुछ हिंदी में इस सेशन को देखते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद तथा समाजवादी समाज की विशेषताएं या लक्षण आज का ये सेशन है पहला। इस सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना को लेकर, इंट्रोडक्शन को लेकर। प्रत्येक समाज के स्वरूप से उस समाज की प्रशासनिक संस्थाओं का स्वरूप तय होता है। किसी भी देश की प्रशासकीय व्यवस्था अपनी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। मतलब जिस देश में जिस प्रकार की व्यवस्था होगी, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, उसी प्रकार का वहाँ का समाज होता है। संपूर्ण संसार में दो प्रकार के समाज पाए जाते हैं, लोकतांत्रिक समाज तथा समाजवादी समाज। लोकतांत्रिक समाज में शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से अनुशासित रहती है। शासन की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या विशेष वर्ग में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है, जबकि समाजवादी समाज में समाज पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। सभी शक्तियाँ राज्य में ही निहित होती हैं। लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन तथा समाजवादी समाज में राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साधन माना जाता है। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहां लोकतांत्रिक तथा समाजवादी समाज दोनों को ही अपनाया जाता है और ये दोनों ही व्यवस्था उस देश में पाई जाती है। और इस प्रकार का जो देश है वो भारत देश भी है। देखिए एक एक करके हम दोनों समाज को देखेंगे, जिसमें लोकतांत्रिक समाज, लोकतंत्र ग्रीक शब्द डेमोज DEMOS लोक जिसका अर्थ होता है तथा क्रेटिया CRATIA सत्ता से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोगों की सत्ता या शासन। ऐसे समाज जिसमें लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों को स्वीकार किया जाता है उन्हें लोकतांत्रिक समाज कहा जाता है। लोकतांत्रिक समाज की प्रमुख विशेषताएं एक एक करके हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहली है, इस प्रकार के समाज में सभी निर्णय खुले विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। दूसरी विशेषता, निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज को शामिल किया जाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव या जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो निर्णय लेते हैं। और चौथा है, अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो ये सभी जो वो लोकतांत्रिक समाज के लक्षण थे। अब हम बात कर रहे हैं समाजवादी समाज,
ठीक है। सोशलिस्ट सोसाइटी जो है व्यक्तिवादी या हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा के बाद पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और निरंकुश शासन का उदय हुआ। ठीक है, उसका प्रारंभ हुआ जिसमें जनता का शोषण किया गया। इन परिस्थितियों ने एक नए विचारधारा को जन्म दिया जिसे समाजवादी समाज कहा जाता है। आधुनिक समय में यही विचारधारा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी है। ठीक है, इस प्रकार की जो विचारधारा है, जो व्यू है, वो इस प्रकार से आज देखने को मिलता है। समाजवादी समाज के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, लक्षण। इसमें पहला है, समाजवादी समाज में राज्य का कार्यक्षेत्र अधिक होता है। दूसरा, राज्य का मुख्य लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय तथा समानता लाने का होता है। ठीक है, जो राज्य है वो कोशिश करता है कि राज्य में आर्थिक, ठीक है, इकोनॉमिक, सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल और जस्टिस जो है वो सबको मिले। इसके बाद में तीसरा है, राज्य प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को अधिक प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आपस में सभी मिलकर सहयोग से काम करें, ये इस राज्य की प्रायोरिटी रहती है, समाज की प्रायोरिटी रहती है। और चौथा है, यहाँ राज्य को अधिक महत्व मिलता रहता है। ठीक है, क्योंकि राज्य के कार्य क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, काम ज़्यादा करता है, तो इसलिए कहीं न कहीं यहाँ पर राज्य को अधिक महत्व, यहाँ इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये इस प्रकार से हमने दोनों ही प्रकार के समाज की बात करी और इनके लक्षण जो कि हमारे यहाँ भारत देश में देखने को मिलता है। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।